Hello everyone, welcome to Let's Improve English. If you watch this video till the end, I assure you that you will learn a couple of idioms and phrases which will help you improve your English drastically. You will be able to learn to speak English impressively. You will be speaking your English impressively and confidently. People will be really amazed when they listen to you when you speak English. तो कुछ ऐसे idioms और phrases हैं जिनका बहुत यूज़ किया जाता है, जिनको वो लोग जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है वो यूज़ करते हैं. आप भी उनका यूज़ कर सकते हैं और आप भी बहुत अच्छा साउंड कर सकते हैं. मैं आपको सेंटेंसेस के साथ बताऊंगा कि उन idioms को, उन phrases को कैसे यूज़ किया जाता है. तो देखते हैं सेंटेंसेस के साथ. सबसे पहला, मुझे थोड़े चक्कर आने शुरू हो गए हैं. इसे इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं I am starting to feel lightheaded. I am starting to feel lightheaded. When you feel lightheaded, it means you think that the world is spinning. The world is just rolling around. You think that the world is spinning. ऐसा लगता है सब कुछ घूम रहा है. It means you feel lightheaded. I am starting to feel lightheaded. जैसे कहना है, क्या तुम्हें चक्कर वक्कर आए थे? Did you feel any lightheadedness? Did you feel any lightheadedness? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. Nothing of that kind happened. Nothing of that kind happened. Or nothing of that sort happened. Nothing happened like that. उससे क्या फायदा हो जाएगा? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What good would that do? What good would that do? या फिर How would it help? How would it help? You don't need to do that. What good would that do? Or how would it help? क्या फायदा हो जाएगा उससे? क्या अच्छा हो जाएगा? हम कैजुअली ऐसे बोल देते हैं ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला तब से, मुझे टाइम ही नहीं मिला तब से, मेरे पास टाइम ही नहीं है. इंग्लिश में कहो I haven't had time. I haven't had time. किसी ने आपसे पूछा Why haven't you done it yet? Oh no. What to tell you now? I haven't had time. टाइम ही नहीं मिला है मुझे. I haven't had time. Why haven't you brushed your teeth yet? Oh, I haven't had time. Why haven't you taken your breakfast yet? I haven't had time. टाइम ही नहीं मिला मुझे. हम ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों से मिलते कहते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंग्लिश में कैसे कहें? सबसे अच्छा तरीका है बोलने का What grade are you in? What grade are you in? ग्रेड या फिर क्लास भी आप बोल सकते हैं. What class are you in? और What grade are you in? उसने तो 3 दिन से बिस्तर पकड़ा हुआ है. हम ऐसे कहते हैं ना, किसी की अगर तबीयत खराब है, वो बिस्तर पर लेटा रहता है बस हमेशा, तो इंग्लिश में कहना है उसने 3 दिन से बिस्तर पकड़ा हुआ है. इंग्लिश में कहेंगे He's been laid up for 3 days. Laid up रहने का मतलब होता है बिस्तर पकड़े रहना, बिस्तर में लेटे रहना. He's been laid up, present perfect. He has been laid up. शॉर्ट में He's been laid up for 3 days. अगर आपको ये भी बताना है कि क्यों बिस्तर पकड़ा हुआ है, तो with के साथ उस चीज़ को आप बता सकते हैं. He's been laid up with a fever for 3 days. यानी बुखार है, उसकी वजह से उसने 3 दिन से बिस्तर पकड़ा हुआ है. 3 दिन से वो बेड में लेटा है. He's not doing anything. He's been laid up in bed for 3 days. अब ये ज़रूरी नहीं कि हम पर्सन के बारे में ही बोले. We could also talk about vehicles. If some vehicle is not running, it's not working, it's under repairs, you can say that the vehicle is laid up. The vehicle is laid up. For example, my car is laid up. I can't lend you my car because actually currently my car is laid up. It means it's not working, somebody is repairing it, it's laid up. जब हमें किसी से कुछ मदद मांगनी होती है तो हम ऐसे कहते हैं ना, पोलाइटली एक बोलने का तरीका होता है कि थोड़ी सी तकलीफ देनी है आपको, या फिर एक छोटा सा एहसान कर दो मुझ पर. इंग्लिश में आप कहिए I need to ask a favor of you. I need to ask a favor of you. या फिर Would you do me a favor? Would you do me a favor? And then you can say what you want them to do for you. You can say Would you do me a favor? Or I need to ask a favor of you. And then you can say whatever you want them to do. They'll be more likely to do it because you started it nicely. Let's assume कि आप पेन यूज कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं पर वो चल ही नहीं रहा. हम बोलते हैं ना, अरे ये तो चल ही नहीं रहा पेन, ये चल ही नहीं रहा मुझसे पेन. इस बात को इंग्लिश में कैसे कहें? आप कार में बैठे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रही, मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रही कार. दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मुझसे दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा. इन सेंटेंसेस के लिए कैसे कहेंगे? आप गेट का यूज़ करेंगे. काफ़ी स्टाइलिश तरीका है ये बातों को कहने का. जैसे कहना है ये पेन ही नहीं चल रहा, आप बोलो I can't get the pen to write. I can't get the pen to write. Get something to do something. यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर पा रहे हैं, उससे करवा पा रहे हैं जो उसे करना होता है. It means you can get it to do it. तो कहना ये पेन ही नहीं चल रहा मुझसे. I can't get the pen to write. लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं इससे, पेन चल ही नहीं रहा है मुझसे चल नहीं रहा पेन. I can't get the pen to write. जैसे
मुझसे तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। I couldn't get the car to start. I couldn't get the car to start. मुझसे कार ही स्टार्ट नहीं हुई। I couldn't get the phone to turn on. मुझसे फोन ऑन ही नहीं हुआ। I don't know how to do it. I just couldn't do it. बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी मिल जाता कहीं पे। कैसे कहेंगे इंग्लिश में? I am extremely thirsty. ये तो कह ही सकते हैं। एक और तरीका, I am parched. I am parched. It means I'm really thirsty. I'm parched. Can I get some water, please? I'm parched. I'm thirsty. When you're parched, it means you're extremely thirsty. You want to have water because there might be a lot of heat because of which you are feeling hot and you are thirsty, you are parched. Right? I hope you got it. मुझे गुस्सा दिखाना बंद करो, मेरी तरफ मुक्का मत दिखाओ। इंग्लिश में कहेंगे Stop shaking your fist at me. Stop shaking your fist at me. गुस्से में ऐसे करते हैं ना, गुस्से में जब किसी को गुस्सा दिखाते हैं कि देख लेना तो समझ जा, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं शेकिंग फिस्ट, क्योंकि इसे कहते हैं फिस्ट, इसे शेक करते हैं, इसे गुस्से में मतलब शेक करते हैं। स्टॉप शेकिंग योर फिस्ट एट मी, मेरी तरफ ऐसे मत करो, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, मेरी तरफ मुक्का मत दिखाओ। स्टॉप शेकिंग योर फिस्ट एट मी, बंद करो ऐसा। इसी का यूज करके एक बहुत यूजफुल सा इडियम है, मेरे पापा तो घर को बहुत एकदम सख्ती से चलाते हैं, बहुत अच्छे से चलाकर टाइट रखते हैं सबको। इंग्लिश में आप कहिए माई फादर रन्स द हाउस विद एन आयरन फिस्ट। माई फादर रन्स द हाउस और रूल्स द हाउस विद एन आयरन फिस्ट। विद एन आयरन फिस्ट, बहुत सख्ती से, बहुत टाइट रखते हैं सबको, अनुशासन में रखते हैं सबको, एकदम रूल्स कायम रखते हैं। सो विद एन आयरन फिस्ट। जैसे आपको कहना है आप पर धूप आ रही है थोड़ी सी, चलो अंदर चलते हैं। कैसे कहेंगे आप पर धूप आ रही है? ऐसे कह सकते हैं यू आर अंडर द सन, यू आर अंडर द सन, यू आर इन द सन, लेट्स गेट इनसाइड। इसे ऐसे भी कह सकते हैं यू आर गेटिंग अ लिटिल सन ऑन यू, यू आर गेटिंग अ लिटिल सन ऑन यू। जी हाँ फ्रेंड्स, सन मतलब सूर्य, सूरज। डायरेक्ट इसी का यूज करके इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, यू आर गेटिंग अ लिटिल सन ऑन यू, थोड़ी सी धूप आ रही है आपके ऊपर। जैसे कहते हैं ना मैं धूप में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द सन, लगता है कि मैं सूरज में खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, इसका मीनिंग यही होता है कि मैं धूप में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग इन द सन, आपके ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही है, यू आर गेटिंग अ लिटिल सन ऑन यू, यू आर गेटिंग अ लिटिल सन ऑन यू। तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। हमारी बात होगी अगले वीडियो लेसन में। वी गोना टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।